we are doing the questions which appeared in the NEET examinations, the medical entrance examinations all over the country by different boards in 2015. And we have come to the topic of magnetism. So what we are doing is magnetism. This is for NEET examinations, and the question number we are doing today is 51. So 50 lectures we have already done. Now see the question in this. It says, yes, the variation of magnetic susceptibility with temperature of a ferromagnetic material can be plotted as this. X is susceptibility, and T is temperature. If you remember, susceptibility is whenever we apply external magnetic field around a magnetic material, across a magnetic material, then that material gets magnetized. How much that gets magnetized, that is its susceptibility. What is its effect? How it is affected by temperature. How it is affected by temperature. So we remember a formula that susceptibility is equal to a constant divided by temperature, or we can say susceptibility is directly proportionate to inverse of temperature. Now this is our test of knowledge, whether we remember this or not. So if you remember this, that susceptibility is inversely proportionate to this, then we need a little mathematics, that is what type of graph this should make, and this is known as inverse graph. So out of these four, which is the inverse graph? Answer, this is A, B, C and D. So out of this you will see B is the inverse graph. So B is the right answer. So here you see, when temperature increase, susceptibility increase. This does not happen. When temperature increase, susceptibility decrease. So in this here, when the temperature increase, susceptibility decrease. Here, temperature increase, susceptibility decrease. But this is directly proportionate. This is inversely proportionate. It is for this relation. So we get it. This is the right option, B. Okay. So remember two things in this. Number one, susceptibility is inversely proportionate to temperature. Number two, the inverse graph looks like number B. Okay. Please see the next question. It says, if R be the distance of a point on the axis of a magnetic dipole from its center, then magnetic field at such a point is proportional to. Here is a magnetic dipole on the axis of a magnetic dipole. This is a magnetic dipole. From here, there is a point on the axis which has a distance of R. So we have to find out, yes, magnetic field at such point B is proportionate to what relation? Is it 1 upon R, 1 upon R square, 1 upon R cube, or none of these? So this is a simple test whether we remember or we do not remember. You see, if you do not remember magnetic dipole, please try to remember the electrical dipole question.
And in electrical dipole derivations, any dipole derivation, you get the field is directly proportionate to r cube, because for magnetic field, this is constant of the medium, magnetic dipole moment for any point, it is 1 plus 3 cos square theta if it is not on the axis, on any angle, that is immaterial, and upon this is r cube, this. So this is an important point here. Rest is not so important because our question is asking about r. So here we are getting b is r cube. So b is proportionate to 1 upon r cube. And this b proportionate to 1 upon r cube is the right option, and this is option number C. So our correct answer is option number C. Okay. Now we go to the next question. See the next question. It says about the use of transformers. And the transformers are used in DC or in AC. In both DC, AC, neither DC or AC. We simply remember it that transformers are working only on AC current. Why they work on AC current only? The answer is because transformer work on the principle of mutual inductance, and what do we need in the transformer is changing magnetic flux. Now flux is B into A, and this B for any solenoid is mu naught n I. Here is the I. If we want E, then this E should be d phi by dt. This is what? EMF induced. So if you want EMF to be induced, there has to be a change in the flux. There has to be a change in this. There has to be a change in this. There has to be this dB makes it di. That means what do we need? We need change in current. So unless there is a change in current, there will be no change in magnetic field, then there will be no change in magnetic flux. So what is this change in current? Answer, there are two types of current, DC, direct and steady current, which do not change in its magnitude, and AC is the changing current which changes its magnitude every second. Every time it's changing, it continuously it's changing its magnitude. We get di, we get dB, we get d phi, and that is doing the EMF and mutual induction. So what do we need? AC. So you remember transformer work only for AC, and that is our right option, and the right option is B in AC circuits. Okay, so now go to the next question. Thank you. See the next question. A bar magnet has a coercivity of 4 into 10 to the power 3 ampere per meter square placed inside a solenoid of length 12 centimeters having turns. In order to demagnetize it, what is the amount of current that should be passed through a solenoid? Okay. Number 1. What is this coercivity? Okay, remember the graph, and this is a graph of magnetization and demagnetization. We are applying a magnetizing force, H. Because of this H, magnetic field is created in the conductor which is kept here. In this, magnetic field is created. That magnetic field is B. So when we increase the H, B increases. When we decrease the H again, okay, sorry, this. When we decrease the H, then we find
the H has become 0, but still some magnetism is left there. So to finish that magnetic field which is left over there, we have to apply H in opposite direction. फिर से समझिए इसको, हमने यहाँ पर करंट फ्लो कराई, करंट फ्लो कराने से इसके अंदर एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड बना जिसको हम बोलते हैं H, और ये H किसके बराबर होता है, Ni. ये हमको अब नॉलेज से याद रहना चाहिए. H क्या चीज़ है, मैग्नेटाइजिंग, जो इसको मैग्नेटाइज करता है उस फील्ड का नाम H है, और जो मैग्नेटाइज होने के बाद इसके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड B है. तो जब हम H लगाते हैं तो H की वैल्यू कितनी होती है, Ni. इसके अंदर जो B पैदा होता है वो इसके मीडियम से अफेक्टेड होता है, एंड दैट इज म्यू Ni. ये दोनों का रिलेशन है. सो B इज इक्वल टू दिस. ओके, सो ये अब यहाँ वापस आइए, कोअर्सिविटी क्या है. हमने H को बढ़ाया, B बढ़ गया, यहाँ तक सैचुरेट हो गया. फिर हमने H को डिक्रीज किया. जब H को वापस हम ज़ीरो ले आते हैं तो क्या देखते हैं कि B ज़ीरो नहीं हुआ. ओके, B ज़ीरो नहीं हुआ. अब हम B को ज़ीरो करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो करना चाहते हैं, तो हम उल्टा H लगाते हैं. ये जब हम इतना उल्टा H लगाते हैं तो B, ये देखिए हाइट क्या हो गई इसकी कर्व की, यहाँ पर ज़ीरो. तो जब H की ये वाली वैल्यू आती है उस समय B ज़ीरो हो जाता है. तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमको उल्टी डायरेक्शन में ज़बरदस्ती लगानी पड़ी B को डिस्ट्रॉय करने के लिए. तो इसको कहते हैं कोअर्सिविटी. ये वाली वैल्यू. तो H की फिर से डेफिनेशन क्या बनी, H की वो वाली वैल्यू जो उल्टी डायरेक्शन में हम लगाएं तो बचा खुचा B भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, मैग्नेटिज्म टोटली खत्म हो जाए. अब ये हमारा क्वेश्चन क्या हमें कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. इसका ये कहना है, इसको हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है. इसके अंदर प्लेस किया तो इसमें हम करंट पास करते हैं, उल्टा H बनाते हैं और इस B को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ओके, तो हमें कितनी करंट फ्लो करानी है. हम इससे क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि हमको इतनी करंट फ्लो करानी है जो कि H बनाए कितना, जितनी इसकी कोअर्सिविटी की वैल्यू है. अगर इतनी कोअर्सिविटी हमको चाहिए तो इतना H इसमें बनना चाहिए. उतना H बनेगा तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा. और हमको दिया गया है क्या, इट इज गिवन टू अस H coercivity, and you are seeing this H coercivity given is 4 into 10 to the power 3. This is coercivity, ampere per meter. Okay, now ये H हमने इसके अंदर बनाना है. अब इसके अंदर H बनता कितना है, ये हमने अपनी मेमोरी से याद किया कि इसके अंदर H Ni के बराबर बनता है. देखो I क्या होता है, एम्पियर, N नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, ये तो ये जो H है Ni के बराबर होगा. सो दिस इज अवर इक्वेशन इज Ni इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 3. और हमको I की वैल्यू चाहिए कि कितनी करंट है, तो इसका मतलब है हमको N भी चाहिए, सो दैट वी कैन पुट इट अप. अब N कितना है, इन्होंने N के लिए हमें देखिए डाटा दिया है. द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 12 सेंटीमीटर एंड इट हैज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 60. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. तो स्मॉल n क्या होता है, ये हमारा फिर से टेस्ट.
स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो इसका फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ. हियर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर 60 एंड लेंथ इज 0.12 मीटर. रिमेंबर 12 नहीं करना है, 0.12 करना है. SI सिस्टम. ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ n. Now we bring it here. So this becomes 60 upon 0.12 into I is equal to 4 into 10 to the power 3. So I is equal to इसको हम इधर ले गए 0.12 multiplied by 10 to the power 3, 123. So this will become 120. 4 into 0.12 into 10 to the power 3 upon 60. Okay, this 10 to the power 3 यहाँ अप्लाई किया 120 this. Now 2s are 120, 2 4s are 8. So our answer for current is 8 ampere, and you are seeing there is a one option of 8 ampere, that is option number B. So this is how it is done. और हमने इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज किए. नंबर 1, H का कंसेप्ट हमको याद आना चाहिए कि हिस्टेरेसिस कर्व में ये वैल्यू H होती है. ये H क्या है? कोअर्सिविटी हमें चाहिए ताकि हम B को क्या कर सके, जीरो कर सके. इतना मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में पैदा करना है. और ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ये H है, B नहीं है. H का फॉर्मूला NI होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स का, और इसके अंदर जो बनता है वो म्यू नॉट NI होता है. ओके, तो ये H इज इक्वल टू NI और इतना H हमने बनाना है. दैट्स सिंपल. और N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ये हमको याद होना चाहिए. SI सिस्टम है, ये हमको याद होना चाहिए. उसके बाद छोटी सी मैथमेटिक्स लगाई, यू गॉट द आंसर. ओके, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू. See the next question. The effective length of magnet is 31.4 centimeter and its pole strength is 0.8 ampere meter. What is the magnetic moment if it is in the form of a semicircle? Oh, so we have a magnet in the form of a semicircle. Now this length, that is from pole to pole, this pole to pole length is given to us. This length is given as 31.4 centimeter, and we have to find pole strength. Pole strength M is given as 0.8 ampere meter. Okay, now the magnetic moment कैसे निकालना है? आंसर है मैग्नेटिक मोमेंट is equal to dipole strength multiplied by distance between dipoles. ये हमने इसमें भी पढ़ा हुआ है. किसमें? माइनस प्लस इलेक्ट्रिकल चार्जेस. ये दोनों का डिस्टेंस कितना होता है? 2L. और दिस इज डाइपोल स्ट्रेंथ P इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 Q into 2L. 2L is the straight line distance between minus and plus. And mind, एक शब्द मैंने बोला है straight line distance. ये इफेक्टिव करता है. क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को घुमाते हैं
तो उस पर जो मोमेंट बनता है, टॉर्क बनता है, वो कितना बनता है। देखिए ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है कार का, बस का, ये स्टीयरिंग व्हील इस तरह से। इसका अगर हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है तो इस टोटल की लेंथ लेंगे या हम इसका डायमीटर लेंगे। यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाते हैं, यहाँ ऐसे फोर्स लगाते हैं, तो टॉर्क के लिए हम ये वाली लेंथ लेते हैं, ये वाली लेंथ नहीं लेते, याद रखिए। तो जब भी हम मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट के लिए ये स्ट्रेट डिस्टेंस हमको चाहिए, तो यहाँ पर भी हमको ये डिस्टेंस चाहिए, दिस वन। एंड नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी, दिस L, दिस इज 31.4, तो ये कितना होगा, हमको मालूम है कि ये होता है 2r और ये कितना होता है पाई r। तो हमें वैल्यू दी गई है पाई r इज इक्वल टू pi r is equal to 31.4, that is 3.14 r is equal to 31.4, so r को इससे डिवाइड किया, this comes to 10 centimeter. If r is equal to 10 centimeter, then dipole strength m multiplied by distance between two r. फिर से सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना लेना है, पाई आर, पाई इंटू आर, और ये गिवन है 31.4, सो आर इज 10, 10, 10. What is this distance? 20. So we will make it m is equal to 0.8 multiplied by 2r, that is 20. So this comes to 116. So now this has come to be 16 ampere meter square. So this is our dipole moment, and this has, yes, the effective length, and this is 16 into, okay, this is centimeter. So let me correct it. If this is r is centimeter, then 20 centimeter. Okay. If this is 20 centimeter, we convert it into meter, and this decimal will come here. Now we can write it 0.16 ampere meter square. Ampere meter square, and now you match it, 0.16 ampere meter square, and that is our option number C. Okay, so this is how it is done, very simple one. So we have to find out, we have to remember that the distance between the poles is to be taken as straight line distance rather than the actual distance, which may be any curvature. Thank you. And now we go to the next question. See the next question. At a place on Earth, the vertical component of Earth's magnetic field is √3 times its horizontal component. Vertical component is 3 times its horizontal component. Okay, this is given to us, and √3 times. √3 times its horizontal component, right. The angle of dip is how much out of these four, which is the angle of dip? Angle of dip. क्या आपको एंगल ऑफ डिप याद है? अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इसके हम दो कंपोनेंट कर देते हैं. वन कंपोनेंट इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको क्या कहेंगे, BH, एंड वन इज विच इज कंपोनेंट इज perpendicular to the surface of earth, we call it BV. Now what is the angle of dip? Angle of dip is
the angle between magnetic field and horizontal direction. This is angle of dip. ओके देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो हमारी सुई कहाँ रुकेगी? इस पर आकर, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल से इतना डिप होगा, दिस इज एंगल ऑफ डिप, और ये इसके बराबर है, सो दिस इज एंगल ऑफ डिप। अब अगर ये एंगल ऑफ डिप है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ पैरेललोग्राम को, तो ये BV है, तो ये मैग्नीट्यूड किसका हुआ? ये मैग्नीट्यूड भी है BV, और ये मैग्नीट्यूड किसका है? BH। तो इन दोनों का रिलेशन इससे लगता है क्या? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH। और ये आपको याद है कि tan थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH। अब यहाँ पर हमको दिया है BV इज इक्वल टू √3 BH, so we put it √3 BH, BH cancel, we get it √3. Now if tan theta is equal to √3, then theta is equal to 60 degree. This is our answer. Okay, so you get here and the option given is √3, sorry 60 degree, that is option number A. So it is done in this way. And now we go to the next question. Please read the question. This says the correct curve between intensity of magnetization I and magnetic field H. मैग्नेटाइजिंग फील्ड H जो हमने लगाया उसके कारण उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड I पैदा हुई। तो H और I इनका आपस में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द टू? ओके, तो रिलेशन हमको पता है, H मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज इक्वल टू N इंटू this is for the solenoid for current. The correct between intensity of magnetization जितना हम इसमें H अप्लाई करेंगे, जितना फोर्स लगाएंगे, उसके अंदर उतने डोमेन सीधे हो जाएंगे, नंबर ऑफ डोमेन्स। और जैसे ही नंबर ऑफ डोमेन्स सीधे होंगे, ये उसके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा, एंड दैट गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। तो जितना ज़्यादा H लगाएंगे उतने ज़्यादा डोमेन सीधे होंगे, उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, एंड दैट गिव्स अस दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू I। ये ओके। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, इसका कर्व कैसा होता है? और हमको मालूम है कि ये एक लीनियर रिलेशन है जिसमें स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो इसमें H बढ़ रहा है, I बढ़ेगा, और स्ट्रेट लाइन देखिए, H बढ़ता है, I कम होता है, H बढ़ता है, I बढ़ता है, पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इन दोनों में H बढ़ता है, I बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, करेक्ट। अब इन दोनों में से हमको एक चॉइस करनी है। ये क्या दिखाता है कि कुछ देर तक तो I बढ़ता है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है। और ये क्या बताता है कि जैसे जैसे H बढ़ता जाएगा, I बढ़ता ही जाएगा। इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन एप्लीकेबल होती है? तो फेरोमैग्नेटिज्म में हम जानते हैं कि मैग्नेट बनता है, ये सारे डोमेन इसके अलग अलग डायरेक्शन में हैं, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं H मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो ये सीधा हो गया, इसका मैग्नेटिज्म आ गया। और हमने H को बढ़ाया करंट बढ़ा के, तो ये भी सीधा हो गया। ये अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बढ़ गया। फिर हम अभी भी ऐसा है, और हमने H को बढ़ा दिया मैग्नेटाइजिंग फोर्स को,
तो ये भी सीधा हो गया ये। अब मैग्नेटाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया, अब हमने H को और बढ़ाया, अब यहाँ प्रॉब्लम है, इसके पास जितने डोमेन थे सब सीधे हो चुके। अब अगर हम H को फर्दर इंक्रीज करते हैं, देयर इज नो डोमेन विच विल गो स्ट्रेट। तो अभी तक मैग्नेटाइजेशन कितना हो चुका है, 1 2 3। अब H को हमने और बढ़ा दिया और देखा कितना है, 3। फिर H को और बढ़ाया 3, फिर H को और इंक्रीज किया, अभी भी 3। अब बताइए कौन सी सिचुएशन मैच कर रही है? सो आंसर इज H को बढ़ाते जा रहे हैं, पहले तो I बढ़ता है, थोड़ी देर के बाद H को और बढ़ाते हैं, मैग्नेटाइजेशन बढ़ना बंद, सैचुरेशन वैल्यू आ गई। सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन। सो B इज अवर राइट ऑप्शन बिकॉज ऑफ सैचुरेशन। तो H is proportionate to I. After saturation, I become constant. इस तरह से ये ग्राफ नंबर D is our right graph. Okay, so now we go to the next question. Okay, see this question. It says a bar magnet with magnetic moment 2.5 10 to the power 3 joule per Tesla is rotating in horizontal plane in the space containing magnetic induction B. Here is magnetic induction B and there is a magnet and this magnet is rotating at any time. It says theta is equal to omega t, that we know. Okay, now question is the work done in rotating the magnet slowly from a direction parallel to the field to 45 degree, from parallel to the field up to 45 degree, how much is the work done? नाउ वर्क डन के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही पॉपुलर तरीका है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. इट सेज द वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी बिफोर द सिचुएशन, बिफोर द वर्क डन, एंड एनर्जी आफ्टर द वर्क डन. ओके, एक बार मैग्नेट को जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके पास एनर्जी कितनी होती है? तो इसके पास एनर्जी होती है mb cos theta. This is negative. This is the potential energy. So work done is equal to potential energy before rotation and potential energy after rotation. Before minus potential energy after rotation. ये है potential energy when it was placed here. What is potential energy here? Again, that is minus mb, and this is cos 45. ये 45. दोनों के बीच का चेंज निकालना है हमको. चेंज this is equal to mb cos 45 minus mb कॉमन निकालिए, and this will be minus minus plus cos 45 minus cos 0. So we have this value cos 45 minus cos 0. cos 0 कितना होता है? 1. और cos 45 कितना होता है? 1/√2.
ओके, थोड़ा सा साइन को ठीक कर लेते हैं, बिकॉज इफ यू वांट द वर्क डन दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर रोटेशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी बिफोर रोटेशन। तो ये इधर आना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था, दैट मीन्स साइन उल्टा हो जाएगा, तो हम भी यहाँ साइन उल्टा कर लेते हैं, एंड दिस विल बी एम बी 1 माइनस 1 अपॉन √2। अपॉन √2, दिस इज √2 माइनस 1 अपॉन √2, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ऐसे करिए या ऐसे ही कर लीजिए, जैसा मर्जी करिए। दिस इज √2 अपॉन 1, इसको मैं वैसे कर लेता हूँ, √2 अपॉन 1 करके देखिए, √2 अपॉन 1, ओके, सॉरी, ये √2, दोनों को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √2 और ये हो गया √2 इंटू √2, √2 की वैल्यू 1.4, √2 इंटू √2 -1, सो दिस इज 0.7 माइनस 1, दैट इज -0.3, और इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.3 इंटू m इंटू b। ओके, अब m और b इसकी वैल्यू अगर आप निकाल कर देखें तो हमें m की वैल्यू दी गई है, आई विल पुट इट हियर, दिस इज इक्वल टू m b, देखिए m की वैल्यू दी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3, b की वैल्यू हमको दी है 4 इंटू 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 इंटू 0.3, ओके, नो सॉरी 0.41। अब इसको पूरा हमने करके देखा, दिस इज 4 2 ज़ा 8 10, एक 10 ये बन गया और एक 10 ये, 10 टू द पावर 4, 10 to the power -5, this is 10 to the power -1, and this is 0.3, so this is 0.03, and what is this work done, इसलिए हमने इसका यूनिट क्या लगा दिया, जूल। और अब आप देखिए ये मैच करता है, किससे मैच करता है, एंड दिस इज 0.03 विच मैचेस सी ऑप्शन, ठीक है, ओके, इट शुड नॉट ओवरलैप। So this is 0.03 joule। फिर से वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर रोटेशन, पोटेंशियल एनर्जी बिफोर रोटेशन, दोनों का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला mb cos थीटा। तो एक बार हमने लिया 45, एक बार लिया 0, उसमें से इसको माइनस किया और ये वैल्यू आ गई, वर्क डन। सो that's always, thank you, and we go to the next question now। okay, we go to the next question, और ये कंसेप्ट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, it says core of electromagnets are made of ferromagnetic material which has, ये 4 क्वालिटी हमको दी है, एक है परमिएबिलिटी और एक है रिटेंटिविटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि उसके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो डोमेन्स हैं कितनी आसानी से घूम जाते हैं, ईजीली टर्न होते हैं, परमिएबिलिटी इज हाई। दूसरा रिटेंटिविटी, टर्न होने के बाद जब मैग्नेट बनता है, करंट फ्लो हो रही है, करंट को हमने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करने के बाद ये ऐसे ही रिटेन रहता है या वापस आ जाता है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, इट शुड कम बैक। तो क्या इसे रिटेंशन चाहिए, आंसर है रिटेंशन नहीं होना चाहिए। टेम्परेरी मैग्नेट में रिटेंशन नहीं चाहिए, जैसे ही करंट स्विच ऑफ करेंगे ये डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, जैसे ही स्विच ऑन करे तुरंत मैग्नेटाइज होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी कौन सी है,
दैट इज परमिएबिलिटी। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा कि हमको ऐसा मैग्नेटिक चाहिए जो हाई परमिएबिलिटी वाला हो, ताकि जैसे ही हम मैग्नेटिज्म अप्लाई करेंगे इसको उसके अंदर, कोर के अंदर हर डोमेन को घुमा देना है, परमिएबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद स्विच ऑफ करने से तुरंत वापस आना चाहिए, रिटेन नहीं करना चाहिए। तो रिटेंटिविटी कैसी होनी चाहिए? लो। दिस इज अवर कॉम्बिनेशन। सो लो रिटेंटिविटी एंड हाई परमिएबिलिटी, there you see this is in combination number B. So this is our right option. Thank you. Okay, please see the next question. This was asked in All India Institute. If the magnetizing field on a ferromagnetic material is increased, what happens to its permeability? That means H और mu, इनका रिलेशन पूछा जा रहा है। डू वी नो एनी इक्वेशन विच हैज गॉट एच एंड म्यू बोथ? आंसर इज यस। वी हैव एच इज इक्वल टू म्यू इंटू, सॉरी, वी हैव बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन ए मटीरियल इज इक्वल टू परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दिस इज मैग्नेटाइजिंग, this is developed magnetic field। तो हमने इससे मैग्नेटाइज किया और ये बना, तो जिससे मैग्नेटाइज किया उससे म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है। अब ये पूछ रहे हैं कि म्यू और एच का रिलेशन बताइए। अब थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं इसमें, किस तरह से? देखिए, दिस इज B अपॉन H इज म्यू। म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। जैसे जैसे आप H को बढ़ाएंगे वैसे वैसे B बढ़ेगा। H को बढ़ाइए B बढ़ेगा, कौन नहीं चेंज होता? म्यू। सो म्यू इज अनअफेक्टेड। दैट शुड बी अवर राइट आंसर। म्यू इज अनअफेक्टेड। बट इफ समबडी इंसिस्ट कि उस मटेरियल का B हम बदलने नहीं देते, अगर हमने B को नहीं बदलना है, उस समय अगर हम H को बढ़ाएंगे तो B तो बढ़ेगा, लेकिन हम नहीं बदलना चाहते, तो हम मटेरियल को चेंज करते हैं और ऐसा मटेरियल लेते हैं, ये H को हम बढ़ा रहे हैं और B को हम नहीं बढ़ाना चाहते, B को हमने कांस्टेंट कर दिया है, तो म्यू का क्या होगा? तो आंसर है म्यू कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने क्या बना दिया? कांस्टेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है फॉर ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब किसी ने इसमें क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R एंड V? मैथमेटिकली यू विल से R इज प्रोपोर्शनेट टू V, पोटेंशियल डिफरेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइए, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि R कांस्टेंट है। जब हम V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, R नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से आपने कैपेसिटेंस भी देखा है, Q को बढ़ाइए तो V अपने आप बढ़ जाएगा, C की वैल्यू चेंज नहीं होती। पर अगर हमसे उल्टा क्वेश्चन कर दिया जाए कि Q को तो हम बढ़ाना नहीं चाहते, V को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो C का क्या करना पड़ेगा? हमको दूसरा कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा जिसमें C की वैल्यू चेंज होगी। Q को कांस्टेंट कर दिया। वैसे ही अगर हमको बोला जाता है कि अगर B को कांस्टेंट करना है तो H और म्यू का रिलेशन क्या है? H इज प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन म्यू एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। तो उसमें हम आंसर क्या देंगे? उसमें हम आंसर देंगे दैट इफ H is increasing,
If H is increasing, what happens to mu? Answer, mu is decreasing. If H is increasing, then mu is decreasing. Option A. पर ये कब है? और ये तो हमको दिया नहीं है। अगर हमको नहीं दिया है तो हमारा सिंपल बेसिक रूल क्या कहता था? You increase the H, B will increase. We are not changing the material. और एक मटेरियल के लिए परमिएबिलिटी की एक वैल्यू होती है. सो परमिएबिलिटी इज अनअफेक्टेड. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सो माय ऑप्शन इज द राइट आंसर इज सी. म्यू अनअफेक्टेड. H इंक्रीज, और H इंक्रीज हमको क्या देगा? इंक्रीज इन B. H को बढ़ाइए, B बढ़ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो म्यू इज अनअफेक्टेड. दैट इज द राइट ऑप्शन. सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस इन मैग्नेटिज्म, बट यू सी these have been asked in All India Institute, UP, Maharashtra, CG, everywhere. So we are always expecting one question from magnetics or material magnetism. Prepare according to that. Thank you.